Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I am your anchor Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद लालिमा जी। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुशील सिन्हा। सुशील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डेंग। Dhanyavad Vibhuti. Yes, the headlines first. Oil prices rise after Saudi Arabia announces more voluntary production cuts from July. Sensex climbs 240 points to close below 62,800 level. Nifty ends near 18,600 mark. जुलाई से सऊदी अरब के अधिक स्वैच्छिक उत्पादन कटौती की घोषणा के बाद तेल की कीमतें बढ़ी। 240 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 62,800 के स्तर के करीब बंद, निफ्टी 18,600 अंकों के करीब बंद। और सबसे पहले शेयर बाजार का हाल लेते हैं। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज औसत बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 62,800 अंक से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 18,600 के स्तर के करीब बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों से अधिकतर सकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक चढ़े। सेंसेक्स 240 अंक या 0.38% चढ़कर 62,787 पर बंद हुआ। निफ्टी 60 अंक या 0.32% बढ़कर 18,594 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% चढ़ा। Key domestic indices today closed with modest gains. Sensex at the Bombay Stock Exchange settled below the 62,800 mark, while Nifty at the National Stock Exchange ended close to 18,600 level. Both indices rose amid mostly positive cues from global share markets. Sensex climbed 240 points or 0.38% to finish at 62,787. Nifty advanced 60 points or 0.32% to end at 18,594. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.3% and small-cap index was up 0.5%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 firms appreciated while 14 depreciated. Among the top gainers include Mahindra & Mahindra, which inched up 4%, Axis Bank jumped 2.7% and Tata Motors jumped 2%. On the other hand, Tech Mahindra declined 1.2%, while Asian Paints fell 1.1% and Nestle India slipped close to 1%. In sectoral indices at the BSE, 17 sectors logged gains, while 3 witnessed losses. Auto sector surged 1.2%, followed by capital goods and industrial jumped 1.1% each. On the other side, FMCG slid 0.4%, information technology plunged 0.2%, while tech ended flat.
The overall market breadth was positive as shares of 2,160 companies advanced, while 1,498 companies declined. A total of 182 shares remained unchanged. We shall talk more on Sensex later. Right now we have N.R. Prasad calling from Bengaluru. Yes, Mr. Prasad, please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yeah. 2 questions. See, mid-cap, 7 of the top 10 most valued companies eroded by more than 65,000 crore. Would it revive? My second question is, Prime Minister visit to US next week. By next Monday, he would be there in US. Will it have any impact on our Indian stock market? Thank you. Now, coming to the first question about you talked about some of the stocks which have lost the value and will it be able to revive in the near future or not. What we believe that if RBI go for a pause again and if Federal Reserve doesn't make a change in the interest rate, then there is a possibility of more rise in the Indian stock market, and that will certainly help the stocks to gain whatsoever they have lost. Coming to your second question about the Prime Minister visit to US and what will be its impact on the stock market, it all depends upon that what kind of MOU and what kind of bilaterals he is going to have with the US President and the US officials. And if there is more in terms of trade and investment, certainly it will have a positive impact on the Indian stock market. इसी बीच गाजियाबाद से हमारे श्रोता हैं संजीव जी अपना प्रश्न पूछें। लगता है उनका फिलहाल संपर्क नहीं हुआ है, दोबारा हम करेंगे प्रयास। क्या लगता है आपको शेयर बाजार आज कैसा रहा? इतने उत्साहवर्धक बढ़त के बाद शाम में थोड़ा लाइटली हमने देखा कि हुआ। देखिए, 2 चीजों पे इस समय शेयर बाजार की नजर है। पहला तो यह है कि रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू हुई है, 3 दिन की बैठक के बाद हमें पता चलेगा कि क्या वो दोबारा जो है वो पॉज पे जाएंगे, यानी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो बाजार को इस बात का इंतजार है और बाजार के लिए सबसे ज्यादा जो इस समय जिस पे नजर है कि स्टांस क्या रखता है। अगर वो स्टांस अगर न्यूट्रल कर दें तो बाजार में और आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये एक मुद्दा घरेलू स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि फेडरल रिजर्व क्या करता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है वहां पर उनकी चुनौती अभी भी ब्याज दर को लेकर के काफी ज्यादा है, माफ कीजिएगा महंगाई दर को लेकर के। और उनके सामने जब महंगाई पे लगाम लगाना है तो ब्याज दर पे भी बढ़ोतरी करनी होगी। तो फेडरल रिजर्व क्या कुछ करता है, रिजर्व बैंक की तरफ से तो एक बात तो साफ है कि वो पॉज के लिए जाएंगे। तो स्टांस पे बाजार की नजर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेडरल रिजर्व की। इसी बीच हमारे साथ संजीव दोबारा जुड़ गए हैं। जी, प्रश्न पूछें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो यूएस डेट सेलिंग फिलहाल 1 जनवरी 2025 के लिए पोस्टपोन हो गया है, तो ये कितना बड़ा इशू है? मतलब अभी तो फिलहाल के लिए 31 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा डेट है यूएस के ऊपर। अभी फिलहाल के लिए तो ये टल गया है, लेकिन मतलब आने वाले टाइम में क्या ये एक मार्केट को डेंट दे सकता है क्या? और प्लीज थोड़ा सा इसके ऊपर और थोड़ा एनालाइज कीजिएगा सर इसको। देखिए संजीव जी, किसी भी देश की ओर से अगर कोई डिफॉल्ट होता है, मान लीजिए कि जो कुछ कर्ज उन्होंने ले रखा है और कर्ज देने वाले को वो समय पर पैसा ना चुका पाएं और खासतौर पर एक सोवरिन ना चुका पाएं, तो इसका संकेत काफी बुरा जाता है। और जब बात अमेरिका जैसे देश की हो तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो यही वजह है कि सारी दुनिया के वित्तीय बाजार की नजर इस बात पर है कि यूएस डेट सीलिंग को लेकर के क्या असर पड़ता है। आपने जो कहा कि जो 2025 तक टाला गया है, देखिए अभी के समय में उनके जो कुछ भी देनदारी है वो देनदारी चुकता करेंगे। आगे चल करके चूंकि वहां पर एक बड़ी परेशानी इस समय यह है कि महंगाई दर पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने काफी ज्यादा नकदी बाजार में डाल रखे हैं और विकास दर उनकी थोड़ी स्थिति तो बेहतर हुई है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर पर आपको याद हो कि जर्मनी में मंदी आ चुकी है और कई दूसरे देशों में विकास दर धीमी पड़ चुकी है। ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर इस संदर्भ में नहीं है क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपने गुड्स और सर्विसेज को। तो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती महंगाई दर है और दूसरी ओर अगर विश्वव्यापी स्तर पर आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ता है तो उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका में किसी तरह की अर्थव्यवस्था पर परेशानी की स्थिति होती है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम कितना सतर्क रहते हैं और इन चीजों में जब कभी भी हमें मौका मिलता है, अगर मैं शेयर बाजार की बात खास तौर पर करूं कि शेयर बाजार में जैसी परिस्थितियां बने वहां पर
आपको अगर दाम कम है तो निवेश करना चाहिए, दाम बढ़ गए हैं तो मुनाफा कमाना चाहिए। Right. We are now joined by Prashant calling us all the way from Kolkata. Yes, Prashant ji, please ask your question. गुड इवनिंग मार्केट मोड टीम सर। Good evening जी। सर से मेरा क्वेश्चन है, तो लास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर हम लोगों ने देखा कैपिटल गुड्स, डिफेंस एंड बैंकिंग सेक्टर अच्छा किया था। तो सर से मेरा क्वेरी है, तो अगले 1-2 साल भी ये जारी रहेगा क्या चेंज होगा, और चेंज होगा तो कौन से सेक्टर प्रोबेबिलिटी अच्छा देख रहे हैं? थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं, डिफेंस और कैपिटल गुड्स हैं, वो पिछले 1.5 साल 2 साल में काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। अभी के समय में जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कैपिटल गुड्स सेक्टर और अच्छा जाएगा, और उसकी वजह यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश है और सरकार की ओर से निवेश के साथ साथ निजी क्षेत्र की ओर से भी निवेश बढ़ रहा है, तो ये एक जिसे कहा जाए कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कैपिटल गुड्स के लिए। तो अगर आने वाले 1 साल की मैं बात करूं तो मेरे रडार पर सबसे आगे में कैपिटल गुड्स होंगे, दूसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होंगे, और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो एफएमसीजी सेक्टर होगा। इसी बीच दिल्ली से हमारे श्रोता, हमारे एक्सपर्ट के हम नाम हैं शशीर मेहता जी, अपना प्रश्न पूछिए। Okay, my query is regarding foreign remittance. My sister has migrated to Canada. Her LIC policy has matured. Now, this amount needs to be transferred to her in Canada. How is to be done, and will the 20% withholding tax also apply? Okay. Since this will be part of the other, this is not part of the medical or tourism or the credit or debit card or UPI remittances up to 7 lakh rupees. So this will be part of the others, where there is no threshold from July 1, and you have to go for a 20% withholding tax. So if you are remitting money for getting from the LIC policy and remitting to your sister in Canada, please be ready for 20% thing. But one thing is there, if your sister is filing a return here, if she is not the permanent resident of Canada or she is not the passport holder of Canada, if she is filing return here, and I'm sure since she is holding the LIC policy, so she must be having PAN. So what she can do, she can file a return here and claim for the refund. If she has paid 20% TCS, that will be possible. Oh, that's good. That sounds good. We're now joined by Vinod Kumar. ये हमें साहिबाबाद से फोन करे हैं। जी विनोद जी, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि जब ये बता रहे हैं कि अमेरिका डिफॉल्ट कर रहा है, तो अमेरिका को भी क्या कहीं से पैसा लेना पड़ता है? उधार सबको दुनिया को बांटता है और लेता है तो किससे लेता है? और दूसरा सवाल ये है कि एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है सर पोस्ट ऑफिस में। जी हाँ, हम बैंकों में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मेरा जानना यह है, बैंकों में अगर मैं पैसा जमा कराऊं इस स्कीम के तहत, तो क्या वो सेफ रहता है या उसमें रिस्क रहती है एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस? देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि जो आपने बात कही जो अमेरिका के डिफॉल्ट की, देखिए अमेरिका एक देश, एक सॉवरेन कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज भले हों, लेकिन आपके जो डोमेस्टिक लेवल पे है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिफॉल्ट की बात यहां पर महत्वपूर्ण है। डिफॉल्ट यहां पर परेशानी जो है वो आपके डोमेस्टिक है। अगर वहां पर अगर आपने घरेलू जिनसे आपने कर्ज ले रखा है, उनको अगर आप पैसा समय पर नहीं चुकाते हैं तो अच्छा संकेत तो नहीं है एक सरकार होने के नाते। और देखिए, ये हर देश आज के दिन में जो उनका बजट होता है वो डेफिसिट का बजट होता है, क्योंकि देश की सरकारें जो हैं वो अपना बजट खर्चे के पहले तय करती है और आमदनी बाद में जुटाने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि वो उधार उनके लिए लेना उनकी मजबूरी है, उनकी जरूरत है। और जब उधार लेती है तो जो पैसा देता है उसको ये लगता है कि चूंकि एक सरकार है तो ये कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकती है। तो सरकारें कोई ना कोई रास्ता इसका निकाल लेती हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की परेशानी आने वाली है। दूसरा सवाल जो आपकी स्कीम को लेकर के, देखिए आज के समय में आप सरकारी बैंक में कोई सेविंग स्कीम खोलते हैं या निजी बैंक में सेविंग स्कीम खोलते हैं, दोनों ही जगह सुरक्षित है। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस डिपॉजिट भी है अगर किसी वजह से बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो। हाँ, बस यहां भी ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे किसी जगह पे ना खोलें आप अपने, चाहे वो किसी कोई एनबीएफसी का नाम लेकर के आपके पास आ जाए या कोई पॉन्जी स्कीम का नाम लेकर के आपके पास आ जाए, ऐसी जगह पर आप अकाउंट ना खोलें। अकाउंट जहां भी खोलना हो, पैसा जहां भी रखना हो, वो पूरी तरह से एक जिसे कहा जाए कि एक सुरक्षित हो, जिसे सरकार के द्वारा मान्यता मिली हुई हो, और उसके ऊपर पूरी तरह से पड़ताल करके ही पैसा रखें। किसी भी
अन्यथा जगह पर पैसे ना डालें। एक मत है कि अमेरिका का दबदबा रहता है हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, UN, IMF. Despite that, can we see America being a defaulter as a victim? This is a very difficult question for me to answer, but what I understand that a country, any sovereign will always try to not default on any of the commitment, because it is also hurting their credibility, not just domestically but globally. And considering the America, which enjoys AAA rating kind of thing, the maximum, what you can say, safety on the best investment rating, it is not going to default. So every year, last year we also saw this kind of situation when the US Senate and Congress, they were discussing that whether we should go for higher ceiling or not. This time the situation is same, but I don't think that any country will go for a default. They will try to find out the way. Of course, it gives a kind of what you can say shivering in the market when we see that a country is discussing that whether we should go for the higher debt ceiling or not. इसी बीच हमारे साथ पंजाब से कॉलर हैं गुरदर्शन जी, अपना प्रश्न पूछिए। इसी बीच में चर्चा आपसे करते हैं, क्योंकि सेविंग स्कीम की बात हुई थी, तो SCSS एक स्कीम है, इसमें 12 से 22% तक का लाभ मिला है लोगों को। तो इसमें जोखिम से कैसे बचना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए लोगों को? मेरे ख्याल से आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें, जो कि डाकघर की स्कीम है। निश्चित तौर पे इसमें काफी अच्छा फायदा हुआ है। देखिए, इसके पीछे दो वजह आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि श्यामला गोपीनाथ एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी को जब कहा गया कि जो छोटी बचत योजनाएं जो 12 होती हैं, जो कि डाकघरों में उपलब्ध हैं, जिसमें NSC, PPF, किसान विकास पत्र, ये सब शामिल हैं, तो उन स्कीम्स पे ब्याज दरें क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरें हैं उस मियाद की, उसके हिसाब से रखें, लेकिन सीनियर सिटीजन पर अतिरिक्त ब्याज दीजिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की जरूरतें हमसे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि उनके पास आय के स्रोत कम होते हैं, उनके पास खर्च ज्यादा होते हैं। आप जैसे उनकी बीमारी का देख लीजिए, उनके खर्च ज्यादा होते हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो हमारी आपकी तुलना में उनको ज्यादा देना पड़ता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काफी हद तक फायदेमंद रहा है, और जब लिमिट बढ़ाई गई है इस बजट में, तो मुझे लगता है कि लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। All right. Let's move on to the next story, which is about Saudi Arabia. Saudi Arabia has announced to cut oil production by 1 million barrels per day in July. The announcement came after a meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC as we call it, in Vienna, though the extra cuts announced by Saudi Arabia are being done unilaterally. Saudi Energy Minister Prince Abdul Aziz bin Salman said the cut, which is announced for the month of July, could be extended. Saudi Arabia's energy ministry said it will now produce 9 million barrels of crude oil per day, which is 1.5 million barrels less than it was producing per day earlier this year. The move is considered to be an attempt to prop up oil prices in response to global economic uncertainty and concerns that international demand could drop. Meanwhile, OPEC Plus countries also agreed to extend oil production cuts they announced earlier in April through the end of 2024. This will reduce the amount of crude they pump into the world market by more than 1 million barrels per day. Global oil production ranges around 100 million barrels a day. OPEC Plus countries produce about 40% of the world's crude oil. OPEC, which is a 13-member organization headed by Saudi Arabia and its 10 partners led by Russia, enable the cooperation of leading oil-producing countries. And oil prices rose today following Saudi Arabia's decision to cut production by 1 million barrels per day in July. In intraday trade, Brent crude was trading at $77.48 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $73.10 per barrel when reports last came in. I think we are now connected with Gurdarshan calling us from Punjab. Ji Gurdarshan, आप लाइन पर हैं? तो सबसे क्या मैम? हाँ जी, आप सवाल पूछिए जी। हाँ जी, पूछिए जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए जी, सवाल पूछे। दर्शन लाल किलोत्रा कैरो पंजाब से आपसे गल कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं ना सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि सऊदी अरब ने बल्कि कच्चे तेलों के जो रेट आ उन्होंने बहुत वृद्धि करती है, वाधा करता, कि साडे देश से भी कोई फर्क पै सकता, ये बारे में पूछना चाहना। थैंक यू सो मच।
अगर आप मुझे बता पाएं कि उन्होंने जो बात कही है। जी, सऊदी अरब के बारे में ही पूछ रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ वहां पे जो स्वैच्छिक कटौती की घोषणा की है, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कच्चे तेल इंडिया की मार्केट, अच्छा, कच्चे तेल के भाव में देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लगभग 3/4 से भी ज्यादा कच्चे तेल की जो जरूरत है वो हम आयात करते हैं। और जब आयात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उत्पादन में कटौती की जाती है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उसके दाम बढ़ेंगे। और उनकी उत्पादन में कटौती करने के पीछे मकसद भी यही है कि दाम किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था उसके ऊपर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ेंगे तो उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप याद करिए कि अगर बीते एक साल में 22 मई को आखिरी बार कीमतों में बदलाव किया गया था जब ड्यूटी घटाई गई थी, उसके बाद से लेकर के अभी तक ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ और पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें भी जो हैं वो उसी स्तर पर बनी हुई हैं। तो मुझे इस समय में ये लग रहा है कि जब ये दाम बढ़ेंगे, और अभी आज के अगर हम भाव देखें तो लगभग 77 का है, अगर 80-82 तक रहता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हमारी चिंता, हमारी परेशानी तब शुरू होती है जब कच्चे तेल का भाव 82 से ऊपर या 85 से ऊपर चला जाए, तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है। And though we are investing in renewable energy, it's still a long time before it starts bearing fruit, because there's electric vehicles and the government has incentivized a lot manufacturing as well as buying of electric vehicles. हम रूस से भी खरीदते हैं तो जी, देखिए, रशिया के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसर्च रिपोर्ट आई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब हमारी सीमा रूस से खरीदने के मामले में अब लगभग हम लोग पार कर चुके हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा वहां से तेल मंगवाना संभव नहीं होगा। योर क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द करंट एट दिस मोमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स आर नॉट दैट मच विच विल prompt the people to go for those kind of vehicles. Of course, we are seeing some changes. Out of 10 vehicles, we are seeing 2-3 vehicles which are the EVs. But replacing the fossil fuel based vehicle in say next 5 to 7 years, I think we will have to wait for at least 10 to 15 years where we can see something around 60% or 50% replacement in terms of the fossil fuel by EVs. Right. तो फिलहाल व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हम आगे जरूर इसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं और अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। इसी बीच फरीदाबाद से एक कॉलर है राकेश जी। हाँ, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एफडी पे कितना पैसा जमा हो कि जिसमें हमारे को टीडीएस ना कटे। जैसे G15 फॉर्म भरना पड़ता है, G15 फॉर्म में कितना हमें अमाउंट होता है कि जो हमारे को ये टीडीएस कट जाता है। अब बेटे का कौन एफडी है तो उसमें अपने उसको भी 20,000 की एफडी है, उसको भी टीडीएस कट सकता है क्या? G15 में भरना जरूरी है। राकेश जी, 15G और 15H फॉर्म जो है वो आपको पता है 60 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर वाले उन व्यक्तियों के लिए जरूरी है जिनकी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है। जो हमारी अभी की व्यवस्था है उसमें 40,000 तक के ब्याज के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसके बाद ही आपका ब्याज बनता है। तो अब आपने जितने एफडी आपने करा रखी है, जितना आपको ब्याज मिल रहा है, अगर 40,000 रुपए के ऊपर है और अगर आपका कुल इनकम अगर आप कहिए कि अगर आप 60 साल के ऊपर उम्र में है तो आपकी 3 लाख रुपए की कमाई है ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो जाहिर सी बात है आपको टैक्स नहीं देना है, तो वहां पर आपको फॉर्म भर देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आप अपने बेटे की बात करें जिन्होंने 20,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया है, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि 20,000 पे ब्याज इतना नहीं होगा जहां पर आपको टीडीएस के बारे में सोचना पड़े। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.26 पर कारोबार कर रहा था। Yes, what do you have to say about rupee dilly-dallying always at 82 rupees, or somewhere around 82 rupees? I think 82.20 I would say, or 82.3 is the new normal at this moment. Yes. Going by the forex reserve we have and going by the demand for a dollar, it should be stabilized between 82 and 82.30, 82, maximum 82.4. But if we see any kind of geopolitical situation, geopolitical tension, then there is a apprehension that we may have to go for higher
what you can say high depreciation in the rupee. Number one. Number two, if the crude prices goes above 85 or 90, then there will be more demand for dollar and then it will pressurize the rupee. हमारे साथ दिल्ली से केशव हैं, सवाल उनसे हम लेंगे, लेकिन पहले जानते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजार का क्या हाल है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और मिश्रित अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट के बाद इस महीने फेडरल रिजर्व के दर वृद्धि में ठहराव की संभावना से एशियाई शेयर बाजारों में आज तेजी आई। जापान का निक्केई 2.2%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक 0.7% चढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5%, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7% चढ़ा। शुक्रवार को तेजी के बाद यूरोपीय बाजार के मिजाज में आज नरमी देखी गई। लंदन का फुटसी 0.5% बढ़ा। हालांकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स अंतिम रिपोर्ट आने तक ये सपाट कारोबार कर रहे थे। केशव जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गोल्ड खरीदना बेनिफिट में रहता है कि हम एफडी ही करा के रखें, जिससे हमारे को डायरेक्ट बैंक में जाके हम एफडी अपनी ब्रेक कर सकते हैं। गोल्ड में हमें 2-3 आपने बताया कि इस तरह से गोल्ड खरीद सकते हैं, तो गोल्ड के रेट बढ़ने के कितने चांसेस और हैं या कम होने के चांसेस हैं? और एक बात ये पूछनी है कि बैंक में एफडी के ऊपर ब्याज दर बढ़ने के और कितने चांसेस लगते हैं आपको? धन्यवाद। पहले मैं अगर केशव जी के प्रश्न का जवाब दूं, उसके पहले जो पुराने कॉलर थे जिन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट की बात की थी, वहां पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि टीडीएस की लिमिट 60 साल से कम के लिए 40,000 है और 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 50,000 है। यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा आपकी अगर कमाई है ब्याज के तौर पे तो आपका टीडीएस कट होगा। अब केशव जी का जो 2 प्रश्न है कि बैंक का एफडी और गोल्ड को लेकर के, देखिए हमने हमेशा सोने को लेकर के यही कहा है कि सोने के गहनों में निवेश मत करिए, भावनाएं आपकी वहां निवेश करें। अगर आपको निवेश करना है रुपए का तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए या जिसको हम लोग ई गोल्ड कहते हैं, चाहे गोल्ड ईटीएफ लीजिए, उसमें आप लगाएं तो वहां पर आप निवेश करते हैं। सोने के गहने अगर आप खरीदेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है अगर निवेश के लिहाज से आप करें, क्योंकि जब आप उसे बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस और सारी चीजें आपको कट जाएगी। दूसरी बात आपने पूछी फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर के। आपको मैं एक बात बता दूं कि कुछ बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें कम कर दी है और इसके कम करने की एक वजह यह है कि बाजार में नकदी आ गई है और खासतौर पे जो 2,000 रुपए के नोट की जो बदली हो रही है उससे बैंकों के पास नकदी बढ़ी है, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट पे जमा पर जो है वो ब्याज दरें कम कर रहे हैं। अभी कुछ बैंकों ने किया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये चलन और बैंकों में भी देखेंगे। But if you speak globally, on the global level, our interest rates on FDs is supposed to be very good. Yeah, of course. And as a depositor, I have 2 options. I can go for the small saving where the interest rates are slightly higher. I can go to the banks where the interest rate may not be as high as what we are seeing in some of the post offices scheme. But still, I will say that banks are offering really good interest rate on fixed deposits. So if you have money, go for 5-year fixed deposit in a bank. If you have more money, then go for some other scheme in small savings. Right. तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के अनुबंध के लिए सोने की कीमतों में आज 87 रुपए की गिरावट आई है। सोना 59,521 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जुलाई अनुबंध के लिए चांदी अंतिम समाचार मिलने तक 270 रुपए गिरकर 71,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,959 और 20 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी दिन के कारोबार में लगभग $23 और 56 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Well, thank you, Shishir ji, for coming to Akashvani Studios and updating us with your views and reviews. Thank you. And friends, before we close, as a reminder of the headlines, oil prices rise after Saudi Arabia announces more voluntary production cuts from July. Sensex climbs 240 points to close below 62,800 level. Nifty ends near the 18,600 mark. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Vibhuti Mishra saying adieu, bidding adieu. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.